edition of the Nahar Jeeto Bookathon presented in association with the Raisoni Foundation. In this session, we shall delve into the groundbreaking book Look Beyond, Break Through All Limits, a transformative journey to achieve the impossible. Look Beyond by Dr. P.S. Rathore Sir delves into the potential of the human mind through the concepts of neurological connection, affecting thoughts, emotions, and actions. It demystifies scientific concepts, providing practical methods to boost mental abilities and creativity. By sharing stories of visionaries like Dr. Jamshedji Tata, Elon Musk, and others, it inspires readers to surpass their limits and achieve their full potential. Dr. Rathore Sir, an esteemed strategist and motivational speaker, offers a transformative journey to harness neurological connections and embrace infinite possibilities. The book also teaches techniques to regulate hormones like dopamine, serotonin, and adrenaline, promoting a more fulfilling life. Our esteemed speaker for this session, Dr. P.S. Rathore Sir, has empowered more than 10 million people from over 20 countries around the world through his motivational videos, live seminars, podcasts, educational videos, and inspirational videos. For more than 2.5 decades, millions of people have enjoyed the humor, love, affection, warmth, mentoring, and the transformational power of Dr. P.S. Rathore Sir's in the area of business and personal development. Dr. P.S. Rathore Sir has learned practical NLP and firewalk with Tony Robbins in Long Beach, Los Angeles, USA. He acquired the knowledge of strategy from Michael Porter, the professor of strategic management at Harvard, and business strategy from Tom Peters. Dr. Rathore Sir has also acquired in-depth knowledge of NLP from the organization of Richard Bandler, USA. Besides, he is a qualified ICAI and graduate from the University of Calcutta. He is on the boards of companies as an independent director and contributes immensely as a strategic advisor for the continual growth of companies. Our moderator for this session is Mr. Rishabh Kumar Savansukha, a chartered accountant and tax and management consultant with 25 years of experience in diverse sectors including Maharatna PSU, Fortune 100 MNCs, multi-state cooperatives, unicorn startups, and leading NPOs. He specializes in networking, taxation, mergers and acquisitions, due diligence, digital evangelism, and brand strategy. Rishabh aims to create 10,000 food entrepreneurs and has a proven track record with companies like Indian Oil, Schlumberger, Coca-Cola, Oracle, and Snapdeal. He's also the founder of Cloudicard, GST Street, and BizStreet Consulting and serves as Chief Secretary of JBN and Chairman of the Jeeto Center for Excellence. Now, I'd like to hand over the session to our moderator. नाहर जीतो बुकाथॉन में आपका स्वागत है। नाहर जीतो बुकाथॉन लाया है आपके लिए 108 जॉनर्स, 108 ऑथर और 108 किताबें। किताबें खरीदता हर कोई है, पढ़ता कोई कोई है, पढ़ता हर कोई है लेकिन समझता कोई कोई है, समझता हर कोई है लेकिन क्या हम जीवन में उतार पाते हैं? जीवन में उतारने के लिए हमें मदद लगती है और इस मदद करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑथर, किताब के एक ऑथर डॉक्टर पीएस राठौड़, जिनकी बुक है लुक बियॉन्ड, जो हमें दिखता है उससे आगे देखने की बुक है। मैं ऋषभ सावंतसुखा, चेयरमैन जीतो सेंटर फॉर एक्सीलेंस, नाहर जीतो बुकाथॉन इन एसोसिएशन विद राइसोनी फाउंडेशन एंड आल्सो प्राउड पार्टनर विद क्रॉसवर्ड। आपके लिए आज इस सेशन में हम जानेंगे ऑथर डॉक्टर पीएस राठौड़ से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुकिंग बियॉन्ड, हम कैसे लुक बियॉन्ड देख पाएंगे, उनकी किताब को हम कैसे पढ़ें और कैसे अपने जीवन में उतारें, और वो किताब लिखने के पीछे उनका मकसद क्या रहा होगा और वो क्या इस दुनिया को देना चाहते हैं, आप सब लोगों को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी इस किताब से। तो वेलकम डॉक्टर पीएस राठौड़ इन नाहर जीतो बुकाथॉन। विदाउट टेकिंग मच टाइम बिटवीन यू एंड द बुक लवर्स, आई वांट यू टू टेल लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड। आपके बचपन से लेके अब तक की कहानी को एकदम से संक्षिप्त में हमें बताइए कि ये किताब के पीछे क्या घटना जुड़ी है, क्या मकसद जुड़ा है। ऋषभ सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एंड दिल से ग्रैटिट्यूड्स। सर, इस किताब के पीछे जो रहस्य है वो ये है, कुछ मेरी लाइफ से है और कुछ बाकियों के लाइफ से है। बचपन में हम सब परिवार में एकजुट मिल करके समाधान करते थे, समस्याओं का
समाधान ढूंढते थे, उसके सॉल्यूशन को ढूंढते थे। आज के युग में ये समस्या समाधान ढूंढने के बजाय अपन लोग ना समस्या के पीछे भागते रहते हैं। इस बुक में जैसे कि चक्रास के बारे में काफी बोले गए हैं, जो हमारी रीतियां हैं, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उसके बारे में बताया जाता है। शिव ने एक किताब लिखा शिव सूत्र, एंड शिव सूत्र के अंदर ये सारी सूत्र बताए गए कि जीवन में कैसे आप सुख रख पाएंगे, धन कमा पाएंगे और दूसरों को आप हेल्प कर पाएंगे। जैसे कि अगर थर्ड आई आपका अवेकन है तो आप जो दिखता है उसे आगे देख पाएंगे। इवन जो आपके साथ कन्वर्सेशन करने वाला है, कई बार आप देखते हैं झूठे लोग आते हैं, फरेब लोग आते हैं, आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपका थर्ड आइज अवेकन है तो झूठ से पर्दाफाश करके खुद उसकी सच्चाई को देख पाएंगे। यानी बॉडी लैंग्वेज में छुपी हुई सीक्रेट जो है उसको आप कैसे ढूंढ पाएंगे, आने वाली जो चीजें सामने दिखती हैं उसके पीछे रहस्य क्या छुपा है उसको आप देख पाएंगे, उसको भेद पाएंगे। वो बात इस बुक मैंने लुक बियॉन्ड में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, जो शिव सूत्र के चक्रा मास्टरी का कंटेंट है। बचपन में देखिए सर, हम में से काफी लोग ऐसे रहे होंगे, शायद जीने के लिए शायद कोई कारण कभी कभी ना मिले। कई ऐसे घर है जिसमें मैं भी अछूता नहीं हूं कि खाने के लिए कभी पैसे ना रहा हो, ऐसा भी रहा हो कि डर लगता हो कि इस मन की कमाई नहीं होगी तो मेरे घर का बिजली का बिल कहाँ जाएगा, किराया कैसे जाएगा, बच्चों का फी कैसे जाएगा, ईएमआई कैसे जाएगा। इस सब सोच से बाहर कोई सोच अगर दिखता है, वो ये बुक लुक बियॉन्ड में लिखा हुआ है कि हाउ कैन यू थिंक बियॉन्ड योर ईएमआई, हाउ कैन यू थिंक बियॉन्ड योर सर्वाइवल, हाउ कैन यू थिंक बियॉन्ड योर स्टेबिलिटी, हाउ कैन यू थिंक बियॉन्ड द फियर फैक्टर, हाउ कैन यू थिंक एंड लुक बियॉन्ड द ट्रस्ट what the peoples are not showing you, how can exactly you move from the safety and security and you can create your life and empire। प्रभु ने अगर हाथ पकड़ा है, शिवा ने आपका हाथ पकड़ा है, तो नेचुरली उसके पास कोई मंजिल होगा। हाउ कैन यू सरेंडर? सो द मोमेंट यू कनेक्ट विद द क्राउन चक्रा, यू कनेक्ट, सरेंडर टू द सोसाइटी, सरेंडर टू द creator, so that whatever the creator you say Mahavir or you say Buddha or Shiva or you say whatever, Allah, Khuda, Jesus, whatever, but the fact is that you have to allow creator to hold your hand and allow yourself. And this is what the secret exactly I've shared in the book. And the most important part I have shared in this book, that how the big achiever like Gautam Bhai Adani has done it। अगर गौतम भाई अदानी ये सोचते कि मैं बिलियनर नहीं बन सकता तो आज कहीं ना कहीं वो मुंबई में काम करते रहते, लेकिन आप गर्व से कह सकते हैं कि गौतम भाई अदानी ने अपने अपने प्रेजेंट सिचुएशन के आगे देखा और नतीजा ये हुआ कि वो जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिलियनर मुकेश भाई थे, क्रॉस करके आगे बढ़ गए। तो ये लुक बियॉन्ड का अंजाम है। सो गौतम भाई अदानी is a perfect example of the look beyond। He did not see on the problem, he saw on the solution। Recently I was in Ahmedabad in the corporate office of Adani, and trust me, the vibes I was feeling, the result I was feeling, how this person must have seen beyond the present situation, beyond the circumstances, beyond the misery, beyond like any other things, like this is the path, this is the creations exactly, the look beyond contain that। सो ये हमारी सीधी सवाली है। और किताबों के बारे में मैं अगर सिंपल सी एक छोटी सी बात कहूं तो इस किताब में एक एक वर्ड वो लिखे हैं जो एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया है दिल से, जो जीवन में बहुत मायने रखते हैं, वो बहुत ही रेलिवेंट हैं। और आज का यूथ और people must be feeling, realizing कि boss, this is the life and how successful people have created their empire and they will get the spark to create the empire for themselves also। So that's a point, that's a content of this book called The Look Beyond। ये So, सेव Dr. करेगा, राठौर, ये गाइड है सर, राइट गाइड। या इस बुक के बारे में हम और विस्तार से आपसे जानेंगे इस सेशन में कि इस बुक, हमारे पास बुक्स काफी होती हैं जो हमें स्टेरॉइड देती हैं, हमें ऊर्जा देती हैं, हमें मोटिवेशन देती हैं, लेकिन कभी कभी लोग बुक को कवर से खरीदते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते हैं, और पढ़ते हैं तो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस बुक को पढ़ने का आपके हिसाब से, आपके अनुसार क्या सही तरीका होना चाहिए
क्या हमें बुक को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, क्या हमें उसको सेलेक्टिव रीडिंग करनी चाहिए, क्या हमें कंटिन्यूटी के साथ उसको रोज पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा एक प्रोसेस को आप बताइए हमें, और साथ साथ ये भी बताइए कि लुक बियॉन्ड, हम सब अपने जिंदगी के रोजमर्रा की चीजों में उलझे हैं, तो उस रोजमर्रा की चीजों से आपने कहा कि लुक बियॉन्ड, सी बियॉन्ड, तो वो सी बियॉन्ड में कौन सी कठिनाइयां आती हैं और वो कठिनाइयों का समाधान आपकी बुक में कहाँ इसको मिलेगा? सर बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा आज के जमाने में बुक रीडर के लिए। पहला आंसर है कि व्यक्ति आराम से बैठे और किताब पढ़े, चाहे फ्लाइट में जा रहा हो चाहे कहीं भी, स्टार्ट करे। पहले मैं बोलूंगा स्टार्ट करे वो रेफरेंस से कि किस लोगों ने बुक के बारे में क्या बोला है। दूसरी चीज को ध्यान दे फर्स्ट चैप्टर के बाद कि उसके लाइफ में उसको किसकी तरह बनना है, रोतरू बनना है या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। अब जैसे कि उसको अगर ये बात ध्यान दे, चाहे मेरा छोटा सा बिजनेस हो उसको मैं बड़ा कैसे करूं, बड़ा सा बिजनेस हो तो और बड़ा कैसे करूं, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो स्टार्टअप कैसे करूं। इसमें लेसन मिलेगा कि परिस्थितियों से घबराने का नहीं है। जमशेद इस स्टोरी में रिसर्च बेस्ड लिखा हुआ है, एंड दिस डिस्कशन आई हैड विद द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द टाटा पावर। इस इंफॉर्मेशन इज नॉट टेकन फ्रॉम द इंटरनेट, राइट। सो डिस्कशन का पात्र और नाम लेके लिखा गया है, और उसमें लिखा गया है कि किस तरह से जमशेद जी जब अपना बिजनेस शुरू किए तो ऐसा भी मौका आया कि उनके इन्वेस्टर्स ने उनको पुश डाउन करके एक वर्कर की कैटेगरी में रख के खड़ा कर दिया और उनका स्टेक काफी मिनिमम कर दिया। लेकिन वहां पे भी जो एंटरप्रेन्योरशिप उनमें था, उनमें सीखा कि वर्कर्स का प्रॉब्लम क्या है और कंपनी को चलाने के लिए वर्कर का सही होना जरूरी है। और यही चीज आज तक रेलिवेंट रखती है कि टाटा के पास अगर सबसे बड़ी एसेट है तो ह्यूमन एसेट है, because that time Jamsetji realized that building machinery can be replaced, but the human asset, sorry, if loyal human assets cannot be replaced. Because I'll tell you, if a one human asset loyal to one company, it is not necessary once he leave that company and goes to other, he will be loyal to that company also. हर जगह किसी सबके लिए नहीं बनता, हर जगह सबके लिए नहीं बनता। तो इस बुक में ये देखा गया है कि जमशेद जी का माइंडसेट क्या था, जमशेद जी ने बिजनेस कैसे शुरू किया। अब दूसरा एक और प्रॉब्लम है, हमारे पास थोड़ा सा धन होता है, एक फ्लैट होता है, और हम ढूंढते रहते हैं मेरे मरने के बाद ये क्या। अबे जीते जीते मरने की क्या जरूरत है। जमशेद जी के दो बेटे थे, केस स्टडीज में मैंने लिखा है, और दोनों बेटे कोई अपना औलाद नहीं था। डिड दे स्टॉप डूइंग बिजनेस? नो, दे मल्टीप्लाइड द बिजनेस। दिस इज अ वन लाइफ, वन हैज टू अंडरस्टैंड it is our responsibility to lead our own life, and if we have care for the society। हम लोग ने अपनी जिंदगी को अपने और अपने बच्चों तक सीमित कर दिया है सर। इस किताब में जमशेद जी के थ्रू ये लिखा गया है हाउ टू लुक बियॉन्ड द सिचुएशन। इवन भगवत गीता के चैप्टर 2 एंड वर्सेस 34 में श्री कृष्ण कहते हैं, इस किताब में लिखा गया है, श्री कृष्ण ये बात कहते हैं कि किस प्रकार से इंसान को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ये सोचते हो कि लड़ाई के युद्ध में खड़े हो गए तो सब कुछ हो गया। नहीं, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, अस्त्र उठाना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। Responsibility area, KRA is not to come in the battlefield, KRA is to kill whom? The enemy। तो ये जो सारी बातें हैं हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इन सिचुएशन से परे देखना पड़ेगा। लुक बियॉन्ड की कहानी जो मेरी किताब में है पहली नहीं है सर, ये पहली बार तो भगवान श्री कृष्ण ने लुक बियॉन्ड सिचुएशन, कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था कि जो है उसे पढ़े देखो, जो विपत्तियां हैं उसे पढ़े देखो, जो प्रॉब्लम है उसे पढ़े देखो, जो इशू है उसे प्रॉब्लम उसे आगे देखो, जो दिक्कतें आ रही हैं उसे आगे देखो, और तब जाके आप निर्णय ले पाओगे कि आप क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अभी उस कर्म को करना पड़ेगा। Like another story I have covered of सचिन जिंदल सर, और सचिन जिंदल सर की बहुत ही क्यूट स्टोरी है उसमें कि जब एक बार वो फाइनेंस मिनिस्टर बॉम्बे के ताज होटल में बैठे थे, he was a party to this। At that time most of the industrialists were complaining कि we are paying 7% rate of interest and is high। At that time सचिन जिंदल सर 21% interest पे कर रहे थे, 21%। Think about that। And then he said, oh my God, what's going on?
और उन्होंने उसी समय कसम खाया कि आई मैनेज माई बिजनेस इन सच अ वे दैट आई shall not pay extra interest on the finance I have taken. I'll manage my fund. And then he learned how to manage the fund. And today, see, the JSW is the highest producer of the biggest producer of the steel in India. I have covered in this book how they were capable to look beyond the situation, and from 21% interest payment they reduced to the normal payment and something like that. ये सिचुएशन है लुक बियॉन्ड का, परेशान नहीं होने का, एक्शन लेने का है. हर चैप्टर के बाद, हर हीरो के स्टोरी के बाद उसमें एक लिखा गया है, एक्सरसाइज है, लर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ दिस, लर्निंग फ्रॉम जमशेद, लाइफ ऑफ जमशेद जी, लर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ JSW founder Sachin Jindal, learning from the life of Mr. Damani, learning from the life of first billionaire of Nepal, Vinod Chaudhary. This is the life. We have to learn from the life of others, and then we can save ourselves from committing mistake. ऋषभ सर, मैं अपनी जिंदगी बताता हूं, और धर्म पे बैठा हूं, धंधे पे बैठा हूं, भगवान सामने है, किताब मेरे सामने है. लुक बियॉन्ड के पास सबसे पहले मैंने सीखा अपना फंड कैसे ऑर्गेनाइज करूं, मैं अपने फंड को कर्ज में दबा हुआ हूं कैसे निकालूं. और कुड यू बिलीव आई वाज पेइंग 1,35,000 रुपीज इंस्टॉलमेंट टू द यस बैंक एंड आई फिनिश टुडे. आज पूरा का पूरा फिनिश्ड हो गया, और 1,35,000 रुपया जो EMI जा रहा था अननेसेसरी, आई मैनेज द फंड just because after learning how these people like Sachin Jindal manage his fund, I learned from him and I got a benefit. If I can get the benefit from being an ordinary person, I think rest of the people also get the benefit by reading the fund, how to manage their fund, how to manage their relationship, how to manage their money, how to manage the appreciation from the people or stakeholder, how to create the career, and how to focus the health. Every aspect of the life I have covered in the book. Let it be the money, let it be the appreciation, let it be the relationship, let it be the career, let it be the health, or even connection to the spiritualism. This book is a solution for all. Wonderful. Yes, I think so wonderfully explained the reason behind you writing this book, and the reason behind everyone must read this book to benefit in their own life, career, business, or finance. Now, as you have mentioned that these people who have become big, then people have started reading them, people have started following them. But believe me, and we all know that big people were not, they didn't start big. They started small. They started from wherever they were. They started from their own network or circle of business or friends, and they grew up by expanding their horizons, by transforming themselves as a human. So, Dr. Rathod, in your book, what are the takeaways in terms of transformation? When we call change is a small thing, transformation is a much bigger thing. So change is a smaller thing, transformation is a much bigger, larger aspect of life. And I believe that transformation cannot happen unless until you choose to do so. So first you have to set your mindset that yes, I want to transform, I want to surrender, I want to see the new myself. So is your book help in terms of that kind of a decision or that kind of a journey if a book lover want to take up? Yes, researcher, everything happens first in mind and then in the reality, right? जो आपने बात कहा, but when it will come in mind, when your third eye chakra is awakened, जब, और यही शिव सूत्र में लिखा है दृश्यम शरीरम, जो आप देखते हैं वही शरीर में निवास करता है. So in this book, I have written in the third eye chakras and Panchbhutam that how can you create the image in your mind and then you can follow the direction of the image. So I have not only said the storytelling कि आपको ये image रखना चाहिए. I have taught कि ये image बनेगा कैसे, ये बड़ा image कैसे बनेगा, उसमें आप उसमें कलर कैसे दोगे. And then I have shared exercises, physical exercises to do every day to reinstill.
बिकॉज जब तक शरीर में चीजों को हैमर नहीं कर देते तब तक नहीं होता. इस बुक में आई हैव कवर्ड हाउ टू क्रिएट द इमेज, and that's the reason that book called the image. This, this color is of the crown chakra. This eyes of the crown chakra, where you do the work by being detached. आप डिटैच होके काम कैसे कर सकते हो? And then you get the result out of that. So in this book, the reader will not read only to see and feel image. They will create image, they live up with the image, they will follow their image, they will give 100% happily without any expectation. Yes, the wording I'm saying, without any expectation. Because the moment you open the crown chakra, you walk 1000% without attachment, because you believe the theory of the karma. So this book has the glance of the spiritualism, but the main point is that the massive action for materialisms. Because आप कोई भी ग्रंथ उठा के लिख लीजिए, I talk the Indic. Why is the Indic? What is the Indic's scripture is? Let it be Bhagavad Gita, let it be Quran, let it be follow Buddha, let it be the Mahavir, or let it be the Sikhisms. This all talks about that you could have your success in terms of the money too, then only you can help. डॉक्टर राठौड़, मेरा ये सवाल था कि इस बुक में जब हम महापुरुषों को फॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी जिंदगी को हम जब नजदीक से जो आपने दिखाने का प्रयास किया है, तो उसमें हमें क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या रोड ब्लॉक आ सकते हैं हमारी अपनी लाइफ में, और उनको ओवरकम करने के लिए हम बुक से किस तरह से मदद ले सकते हैं? देखिए सर, इस बुक में ये बात बता रहा है कि लाइफ में कभी भी कोई जिंदगी जो बड़ी होती है वो प्रॉब्लम से बड़े नहीं होता. तो इसमें एक ही मैसेज है कि आप इतने बड़े बड़े लोगों को देखिए जिनकी लाइफ मैंने कवर किया है, उनकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आया, और ये लाइफ जो मैंने कवर किया है, चाहे ये जमशेदजी टाटा का हो, चाहे इवन एलॉन मस्क का हो, चाहे सज्जन जिंदल का हो, चाहे राधा कृष्णन का हो, वेदानाथन का हो, संप्रदा सिंह का हो, गौतम अदानी का हो, शिव नादर का हो, रवि जयपुरिया का हो, सुनील कुमार अग्रवाल का हो, या विनोद चौधरी का हो, ये सक्सेस स्टोरी डाले गए हैं इसमें, और इस तरह से डाले गए हैं कि उन्होंने अपने जिंदगी में आने वाला पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम को उन्होंने कैसे सॉल्व किया. And once they could do the solution through the technique of the Shiva, we could also solve the problem of our life through the technique of Shiva. इस बुक में क्लियर लाउडली ये बात बताई गई है कि हाउ दिस पीपल clear their doubt both at the spiritual level and the personal level and the material level. Then why can't we do it? हम लोग लिमिटिंग ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं. मैं किसके लिए काम करूं, मेरे लिए जितना है उतना काफी है. हम लोग लिमिटिंग ब्लॉक करते हैं कि अपने बच्चे के लिए करना था, बहुत कमा लिया. हम अब सोसाइटी में भी सोचते हैं ठीक अपना हो गया, कुछ करने का कोई फायदा नहीं है. दिस बुक टॉक्स अबाउट look beyond your own children, look beyond your own society, look beyond your own need, look beyond your own system and think widely. और ये हिंदुस्तान की ये रीति रही है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कि जब वो पैसा कमाते हैं तो वो विश्वास करने लगते हैं समाज के उत्थान के लिए. और ये स्टार्टेड फ्रॉम द जमशेदपुर एंड जमशेदजी टाटा. और रिसेंटली आई वाज इन द हैम्पी, और मैंने वहां देखा कि किस तरह से सज्जन जिंदल सर ने मेहनत किया. रिसेंटली आई वाज इन विजयनगर, और शिव जी की वो मंदिर जो बहुत ही उजड़ा अवस्था में हो गया था, उजड़ गया था, टूट गया था, and how he rebuilt the Shiva temple, right? So the question is that हमारे पास होगा तो हम कर पाएंगे. हम पहले ही सोचते हैं कि हमें करने का क्या फायदा, ऐसा नहीं सोच सकते. We are the creator. We have to follow the person who have created it. We have to follow the creator, and one day we will become a creator. ये बात इस किताब में लिखी गई है. Be creator of the universe rather just condemning the universe what is not good. Create good what you have rather than just criticizing the bad and the things what you see at. Don't be the part of a criticism, be the part of a creator, because you are the energy. That's what the exactly book talks about. This book is not just mere storytelling, it talks about the action, how to take action to achieve something what really you want.
ये बात ये कहता है। वंडरफुल सर, वंडरफुल। आई थिंक आपने इस बुक के माध्यम से काफी लाइट जो दिखाई है, एक अंधकार से प्रकाश की तरफ आने की जो लाइट है वो हमारे अंदर है, हमारे सबके अंदर एक शिवा विराजमान है। उसके सूत्र हैं जो आपने इस बुक में अपने लोगों के अनुभवों को संजोया है, माला में मोती की तरह उनको पिरोया है। और अब उस मोतियों से कैसे आप फायदा उठाएंगे एज ए बुक लवर। तो नाहर जी तो बुकाथन, हम इसमें हमारा प्रयास है कि जिंदगी में हमें सब कुछ चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, हमें पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, गुड फूड चाहिए, गुड व्हीकल चाहिए, अच्छे मकान चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जिनकी संगति में हम रहें हमेशा। तो ऐसे में जब तक हम लुक बियॉन्ड को फॉलो नहीं करेंगे तब तक शायद हम अपने ही जैसे कहते हैं कि कोई अगर व्यक्ति अंधकार में है, दलदल में है, परेशानी में है, तो थोड़े समय बाद वो परेशानी उसको अच्छी लगने लगती है, क्योंकि वो उस परेशानी से यूज टू हो जाता है। उसका माइंडसेट उस परेशानी को प्यार करने लगता है। और जब कोई दूसरा उसे कहता है कि भाई तुम गलत जगह पे हो, तुम गलत परिस्थितियों में हो, उसे बाहर निकलो, तो वो बाहर निकलने में ही इंटरेस्टेड नहीं होता। तो उस समय ऐसे लोग कहते हैं कि हम तो कंटेंट हैं, हम ये जो कर रहे हैं। इवन अगर कोई आतंकवादी है तो वो आतंक में उसको मजा आ रहा है, जबकि पूरे समाज को लग रहा है कि भाई आतंक गलत है, तुम मत करो ये काम, ये समाज के लिए ना अहितकारी है। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि हमारे जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो हमारे मेंटल ब्लॉक्स हमें अच्छे इंसान से बुरे इंसान की तरफ ले जाते हैं, तो क्या लुक बियॉन्ड पढ़ने से कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी आती हैं लोगों में, कि जो कभी किसी गलत आदत का या गलत प्रवृत्ति का या गलत विचारों के शिकार हैं, मैं कहता हूँ गलत विचारों के भी लोग शिकार होते हैं, तो ऐसे लोगों को लुक बियॉन्ड पढ़ने से क्या उनके अंदर कुछ नई स्फूर्ति, कुछ नई प्रेरणा जग सकती है? या ऋषभ सर, मुझे लग रहा है कि ये किताब लिखते समय आपकी आत्मा मेरे शरीर में आ गई थी। बहुत ही अच्छी तरह से ये बात लिखी गई है कि किस तरह से ब्रेन पोल्यूट हो जाता है, निगेटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, बैड परसेप्शन बनने लगता है। एंड उसमें एक मैंने लिखी है उस मेढक की कहानी कि किस तरह से एक मेढक को पहली बार जब पानी में डाला जाता है तो वो मेढक को थोड़ा गंदा लगता है, वो थोड़ा उछल कूद करता है, बाद में वही उसको अच्छा लगने लगता है। और एक बार वो फिर से क्या होता है, उस पानी गर्म होते जाता है, वो चेंज नहीं करता, एंड देन वो मेढक टर्न अप हो जाता है एक डेलिकेसी में जो चाइनीज का फूड है। My question I've written in the book that if you feel something is not working, you have to change. Only you can change, nobody else on your behalf. I've written the story of my दादा दादी नाना नानी एंड दादाजी हमेशा बोलते थे कि अगर कुछ जमता नहीं है ना तो उसको छोड़ के दूसरा करने का है। दादाजी ये बात करते थे कि अगर एक जगह बैठा हुआ है और सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो यात्रा फेर करो, जाके नाना के घर के रह के आओ, नानी नाना नानी के घर के रह के आओ, जा करके कहीं दोस्त के पास रह के आओ, आप रिश्तेदारों के पास 2 दिन रह के आ जाओ। यात्रा फेर करोगे तो चेंज होगा। As you said that a little change leads to a transformation. So I have written in the book कि निगेटिव माइंडसेट को आप कैसे चेंज कर सकते हो। और उसके लिए जो दादी बोलती थी छू मंतर फॉर्मूला कि निगेटिव चीज चली गई, उसको एनएलपी स्विस पैटर्न की तरह समझाता है। तो आई हैव रिटन द टेक्निक लाइक अ स्विस पैटर्न, that how by using a Swiss pattern you can change your negative attitude and go ahead for that. You will get out of your comfort zone and you can create the bigger one. I have written not only the dialogues, I have written the technique, like what happens. अब इस हाथ में रखिए कि नेगेटिव चीज कर रहा हूं, अगर मैंने चेंज नहीं किया तो 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा, एंड तक क्या होगा। देन क्लोज हिज हैंड, टेक अ राइट हैंड। अभी चेंज कर लिया तो क्या होगा, फैमिली के ऊपर क्या थ्रू होगा, मनी के ऊपर क्या होगा, पीस के थ्रू क्या होगा, स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू होगा। एंड देन कंपेयर, जस्ट बेंचमार्क where you want to be, where are you right now, where are the gap, what are the actions you're going to fill up the gap. ये बेंचमार्किंग प्रोसेस सीए की क्लासेस में मैं तकरीबन 20 साल पढ़ाया हूं और कॉर्पोरेट की दुनिया में इसके ऊपर बड़ी लेक्चर दिया है। इस बेंचमार्क प्रोसेस को मैंने जीवन में लाने के लिए लोगों को इस किताब में मैंने लिखा है, हाउ टू यूज बेंचमार्क प्रोसेस to achieve what you want and leave what you don't want.
ये आप ही को एक्शन लेना पड़ेगा, ये कोई और एक्शन नहीं लेना. Only you have to take action for your benefit. Nobody else will take the action for your benefit. That's keep you mind in life. ये जर्नी आपकी है, जीवन आपका है. याद जाने के बाद जीवन में आपको याद करेंगे. इतिहास कभी भी किसी खानदान पे निर्भर नहीं करता. इतिहास हमेशा व्यक्ति के बारे में लिखता है, उसके कर्मों के बारे में लिखता है. So think who you are. What are you up to? What do you want to change in your life? Why do you want to change? What are the different ways? And when are you giving timeline to change? I have written in this book the framework of the life, and it's all my experiences. It's not the story, it's not something like that. And even if you get the story will be what my dadi used to tell, what my nani used to tell, what my dada used to tell, what my dadi used to tell, and what Shiva used to tell to Ganesha. That's the story is all about. सब प्रॉब्लम क्या है ना कि हम हिंदुस्तान में ना रेफर उसको करते हैं जिसके सर के आगे माइकल लिखा है, टाइकल लिखा है, टोनी लिखा है, सोनी लिखा है. लाइक दिस इज, हम उस व्यक्ति को रेफर नहीं करते. मैं बोलता हूँ ट्रेन में, यार राठौर वाले भी अच्छे मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं, राठौर को ऑल्सो यू कैन रेफर. आई डोंट हैव टू कैरी अ सरनेम कॉल लाइक अ माइकल, और I have the Potter or something like Peter. Even Rathore can work. We do have a rituals, we do have a Sanskriti, we do have a customs, and trust me, जितना नुकसान मुगल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें नहीं दिया, उससे ज्यादा नुकसान हमने अपनी कल्चर को छोड़ करके दिया है. हमारी जो नॉलेज है, जो दादा दादी से आया, हम नीचे पास नहीं कर रहे हैं. नतीजा ये है कि हमारे अपनों बच्चों के साथ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम्स हो रहा है. ये बात बोल रहा है किस तरह से मैं दादा दादी नाना नानी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द कनेक्ट. और इस बुक में क्लियरली लिखा है यंग बच्चों के लिए कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा डिप्रेस्ड ना हो, मेंटली सिक ना हो, तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि अपने बच्चों को उनके दादा दादी से अलग नहीं करना. They are the university, they are the institute, and if you ask me, I can rank them even bigger than the Harvard, even bigger than the London School of Business, even is bigger than any degree your child gets. If your child don't get the degree and education from their grandfather, sorry, they will be the weaker people, and in the coming time, they will be more prone to the depression. आपने बहुत सही कहा कि कभी भी अपने बच्चों को अपने दादा दादी या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अलग मत करना, नाना नानी दादा दादी, क्योंकि उनसे जो संस्कार मिलते हैं, उनसे जो उनकी सिखलाई होती है, जो उनकी नींवें मजबूत होती हैं, नींव और कोई मजबूत नहीं कर सकता. दादा दादी नाना नानी जो नींव बनाते हैं. तो आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया ग्रैंड पेरेंट्स का. और यहाँ पे चूंकि परिवार छोटे हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, जीवन जीने की आपाधापी और भाग दौड़ में हर व्यक्ति भीड़ में अकेला है. सोशल मीडिया पर उसका लगा हर दिन मेला है, लेकिन हर रात को वो सोचता है कि मैं आज अकेला है. तो बेसिकली इस अकेलेपन में लुक बियॉन्ड से वो अपनी आंतरिक शक्तियों से अपनी मैनिफेस्टेशन को जगा सकता है. अपने चक्रा को बैलेंस करके वो अपने लक्ष्य के प्रति, आज मैं डिस्कस कर रहा था लक्ष्य और साधन, साध्य और साधन. बहुत लोग अपने साधनों को साध्य बना लेते हैं और कंफर्ट जोन में, कंप्लेसेंसी में चले जाते हैं, और उस चक्कर में वो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं कि उनको ये जीवन क्यों मिला है. आज लुक बियॉन्ड में आपने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही कि व्यक्ति खानदान को नहीं, व्यक्ति आपकी बैलेंस शीट को नहीं, इतिहास आपकी खानदान को, आपकी बैलेंस शीट को याद नहीं करेगा. इतिहास आपके व्यक्तित्व को याद रखेगा, इतिहास आपके कार्यों को याद रखेगा, इतिहास आपके वर्तमान को याद नहीं रखेगा, तभी तो वो इतिहास है. तो इसका मतलब आप लिगेसी बिल्ड करने की बात कर रहे हैं. आपकी इस किताब को पढ़कर क्या किसी व्यक्ति में ऐसी भावना भी जाग सकती है कि भाई मैं अपनी लिगेसी कैसे बिल्ड करूं, मैं पीछे क्या छोड़ के जाऊं, मैं ऐसा क्या कार्य करूं कि जिससे मेरा नाम अमीर के साथ साथ अमर भी हो जाए. बिल्कुल सर, इस किताब में यही बात लिखी गई है और एग्जाम्पल से दिया गया है
कि जमशेदजी ने बैंक बैलेंस के कारण अपना इतिहास नहीं बनाया, अपने कर्मों से इतिहास बनाया। और ये इस बुक में क्लियरली एक्सरसाइज पे लिखा गया है और केस स्टडीज के साथ समझाया गया है कि जमशेदजी से बड़े बड़े बिजनेस आए होंगे और गए होंगे, लेकिन हिंदुस्तान की हर धड़कन में बैठते हैं जमशेदजी, और जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक जमशेदजी रहेंगे। ये है लीगेसी का सबसे बड़ा पहचान। और किस तरह से उन्होंने बैंक बैलेंस नहीं, वो अमीर नहीं, अमर होने की बात सुनती, और इस तरह से किस तरह से जमशेदजी ने अमर होने की बात सोची, ना कि अमीर बनने की बात। वो बैंक बैलेंस ऐसे ही रह जाएंगे, बच्चे कहाँ यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जमशेदजी ने वो अमर की प्रथा कैसे बनाई। आपको विश्वास होगा सर, इसके स्टडीज में बुक में लिखा हुआ है कि जब यूके, तब इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, यूके में भी प्रोविडेंट फंड नहीं था, ग्रेचुइटी नहीं था, सोशल ऑडिट नहीं था, जमशेदजी इंडिया में लेके आए। आप उनका विजन देखिए सर, उनका विजन ये था कि रिटायरमेंट के बाद मेरे वर्कर क्या करेंगे। आप सोच के देखिए, आज के दिन में आज आपकी एक एम्प्लॉय की नौकरी चली जाती है, कल एम्प्लॉयर नहीं सोचता वो जिंदा है, मर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दे डोंट केयर। रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना आजीविका कैसे संभालेगा, उसके उसके पास क्या होना चाहिए, उसके लिए जमशेदजी ने किस तरह से सोच रखी, किस तरह से रूल इंप्लीमेंट किया, जिसके लिए ऑब्जेक्शन इवन यूके वाले, लंदन वाले, ब्रिटिश इंडियन कंपनी अपोज करती थी, ताकि उनको डर था कि पूरे वर्ल्ड के वर्कर यही मेरे से भी मांगेंगे। लेकिन उनसे लड़ने के बावजूद भी जमशेदजी ने हिंदुस्तान की अपनी कंपनियों में प्रोविडेंट फंड को जन्म दिया, ताकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट के बाद, रिलिक्विशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद, सुपरएनुएशन के बाद अपनी इज्जत की जिंदगी, स्वाभिमान की जिंदगी जी पाए, वो अचानक भिखारी ना बन जाए। और इस तरह से उसको राजा बना के रखने का काम जमशेदजी ने किया। और उस तरह के चीज इवन सज्जन जिंदल सोचते हैं, उस तरह के चीज इवन गौतम अदानी सोचते हैं, और आज करके इंडस्ट्रीज के लिए वो बेंचमार्क है, ये स्टैंडर्ड सेट किया गया था जमशेदजी के द्वारा। Think about this book contains about that. I think it's a wonderful book, and I would request all the viewers who are watching this session with Dr. P.S. Rathod कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट आप सब लोगों की लाइफ में दिया है। आप इस बुक को ना केवल खुद पढ़ें, आप अपने परिवार को, मित्रों को, स्टाफ को, अपने संबंधियों को इस बुक के बारे में जानकारी दें। बुक अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, और बहुत सारे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर राठौड़ से मांगेंगे कि एक हमें लिंक दें, जहां से इस बुक की प्रति, अगर पॉसिबल हो, उनके सिग्नेचर वाली प्रति भी आप खरीद सकते हैं। यस वी कैन डू इट, आई लव टू गिव दैट। वो लिंक जो है हम डॉक्टर राठौड़ से लेकर आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाले हैं। और नाहर जीतो बुकाथॉन में जुड़ने के लिए हम डॉक्टर राठौड़ के बहुत तहे दिल से आभारी हैं कि उन्होंने ये सेशन का लाभ अनेकानेक लोगों को दिया। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सेशन को कंप्लीट देखने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जीतो की तरफ से कि आपने इस बुक के बारे में जान लिया है ऑथर से। तो एक ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हम हर व्यक्ति को देंगे, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से वो है, किसी कंट्री का निवासी है, इंडिया का है, नॉन इंडिया का है। दिस बुक is available to all. It is written in a very simple English. English is a universal language which most of the people in the world they understand. Now, to make you more live with the subject, books are our best friend. Today, पहले मुगल थे, आज गूगल है, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें अपने सही इंफॉर्मेशन का, सही कंटेंट का चुनाव करना है, फिल्टर लगाने हैं, और वैसे कंटेंट जो ऑथेंटिक हो वो मात्र एकमात्र बुक से अवेलेबल है। आज ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, जीपीटी, कहीं से भी आपको कंटेंट सही नहीं मिल सकता। आपको हमेशा किताबों को अपने साथ रखना होगा, क्योंकि वही आपकी सच्चे मित्र हैं, वही आपके अच्छे मित्र हैं। Thank you very much, Dr. Rathod. Thank you very much for getting aligned and participating in 108 author, 108 top author of top genres by Nahar Jito Bukathon. धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. नाहर जीतो बुकाथॉन के बारे में आपसे एक लाइन चाहूंगा। ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है, फ्री टू ऑल, फ्री फॉर ऑल, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, और खास करके मैं
आपके क्रिएटिविटी के बारे में बात करता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप सोचते हो, आप तहे दिल से सोचते हो और आप सेल्फलेस होके सोचते हो, सोसाइटी का भला रखने के लिए सोचते हो, तो इस बुकाथन ताहरजी बुकाथन के बारे में आपका ब्रेन चाइल्ड है, आप लोगों का ब्रेन चाइल्ड है। आपकी नीयत अच्छा है तो नियति भी अच्छी होगी। और एक किताब से एक व्यक्ति एक शब्द भी लेकर के अपनी जिंदगी में अपना लिया तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, दैट्स अ प्राइसलेस। तो ये जो आपने अभियान शुरू किया है, ये अभियान एक ऐसा अभियान है जो लोगों के दिमाग में क्रांति ला देगी। बड़ा सा बड़ा क्रांति भी किताबों से हुआ है, बड़े से बड़े वॉर भी परचेज से जीते गए हैं और बड़ी से बड़ी दुनिया किताबों से बनाई गई है। और हिंदुस्तान की संस्कृति है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए लोगों ने सबसे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की कोशिश करी, संस्कृति को जलाने करी। आप किताबों के माध्यम से उस संस्कृति को जलाने की कोशिश करते हैं जिसको लोगों ने, दुश्मनों ने जलाने की कोशिश करी। इससे बड़ा मैं क्या कह सकता हूँ, इससे बढ़िया सोर्स नहीं होता युवाओं को जगाने का। जो लिपि की बात आप देते हैं और उस लिपि में आप जो शिक्षा का केंद्र किताबों का बना रहे हैं, उसे इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई नेक काम नहीं हो सकता, इससे अच्छी नीयत से बड़ी कोई काम नहीं हो सकती। क्योंकि जितनी ज्ञान किताबों से ली जा सकती है, जितना सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म में ली जा सकती है, उतना किसी भी जगह से नहीं ली जा सकती। और इस चीज को, इस रहस्य को आपने समझा है, लिखा है, युवाओं में डाला है। और मैं तो कहता हूं कि 108 बुक ऑथर छोड़िए, उसमें से 8 ऑथर की जिंदगी से अगर 1000 बच्चों ने जिंदगी में अपने फायदा उठा लिया तो आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। क्योंकि मैं समझ सकता हूं सर, इतना टाइम निकालना, कनेक्ट करना, कंटेंट करना, जूम पे लगे रहना, ये आसान काम नहीं है। और आप जैसे लोगों के द्वारा, जिनकी टाइम की कीमत है, जिसका टाइम का वक्त है, तो आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। शिवा आपको रिटर्न जरूर देंगे, क्योंकि नीयत अच्छी है तो आपको कर्म भी मिलेगा। और नीयत ऐसी है कि लोगों को हेल्प किया जाए और उस चीज को जन्म दिया जाए जिसको दुश्मनों ने मार दिया। वो हमारी संस्कृति, हमारा किताब, हमारा रहस्य और हमारी चीज है। इसके लिए भगवान शिव आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैं खुद लुक बियॉन्ड किताब को पढ़ूंगा द वे यू हैव टोल्ड अस। हम इसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कुछ चीजें हम अपने जीवन में उतार पाएं। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट, परफेक्ट सर, परफेक्ट, थैंक यू।